इतना सफर है कुछ होने में और बहुत कुछ होने में। इतना सा फर्क है एक बार सोच के छोड़ देने में और लग के कर दिखाने में। मान लेने में कि जिंदगी ऐसे ही कटेगी और सुबह 4 बजे उठ के सोचने में कि अभी तो बस शुरुआत है। किसी मैगजीन को हाथ में लेने में और उसी मैगजीन के कवर पेज पे होने में इतना सा ही तो फर्क है। वीआईपी सीट में और उसकी पिछली सीट में इतना सा ही तो फर्क है। वो जिसका मैदान ही खुला आसमान है वही कल जमीन पर तो था। पूछोगे तो बताएगा वो पंछी कि एक दायरे में सिमटने की दुनिया को दायरा बनाने में बस इतना सा फर्क है। इतना कितना है? इतना है या इतना है? जो नापेगा वो जाने कि जहां धरती और आसमान मिलते हैं, नानकुर से दूर, अगर मगर शायद से दूर, वहां भी दोनों में फर्क बस इतना सा है। धरती और सातवें आसमान में फर्क बस इतना सा है। ये एक अंतर प्रेरणा है। ये हमारी, आपकी, हम सब की अंतर प्रेरणा है। एक कदम, एक छलांग, एक बाजी, एक गहरी सांस और एक ललकार खुली हवाओं में कि हाँ मैं बना हूं उन फिजाओं के लिए, कि हाँ मैं बना हूं उन ऊंचाइयों के लिए जो ऊंची तो बहुत है पर नामुमकिन भी नहीं, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन में बस इतना सा फर्क है। धूप छांव में फर्क बस इतना सा है। तो बस चलिए फ्रेंचाइज इंडिया के साथ ये फर्क मिटा देते हैं। फ्रेंचाइज इंडिया, 20 years of ideas. Dear all, a very good afternoon from our side. I am Archana Sharma. On behalf of entire Franchise India team, we welcome each one of you to our Business Opportunity of Chai webinar series. This is a digital representation of the brand of the day, and we do not endorse any particular brand. If I talk about Franchise India is a platform which is helping day in, day out all investors in getting the business solutions from our side so that you can take conscious and informed decision of selecting the right franchise for you. It is our privilege to welcome management team of Franchise India, Gaurav sir and Sonia ma'am. During the webinar, they'll be talking about industry, they'll be talking about the brand, and we'll take all your queries. The brand which we are representing today is Wonder Food Mart. The brand which was established with a vision of providing high quality fresh food and grocery to each one of us. And today we welcome and invite Mr. R.S. Choil, who is the Executive Director, talking about how this is a profitable and scalable business for each one of us. They have strong presence in India as well as in Dubai also. Thank you so much, sir, for joining us today. We would like to understand the entire journey of Wonder Food Mart from your side. Over to you, sir. Thank you, Archana. And I would like to thank you, the management team of Franchisee India, especially Maria sir and Sonia ma'am and Archana ma'am. And behind me, my team is there, Yash, Vardhan, Anirudh, Anil, and Shubham. And we are here to enlighten you on the concept of freshness on Wonder Food Mart. I would like to request Anil to share the PPT so we can discuss on the points. We are all facing the corona pandemic scenarios, and in this scenario we all aware about that everybody is demanding grocery delivered to their homes, to their doors, as well as they want freshness. So we are here with the concept named Wonder Food Mart, and I would like to tell you more about the Wonder Food Mart during my session, but over here I would like to tell you that Wonder Food Mart is our idea, our brainchild to give the customers a sattvic and pure food. It is not merely a profit-making organization. It is with the concept to provide freshness as well as the purest form of the food to the customers. So
Why food grocery business? From last 1 year, we all aware about that. There are few business who are in a high demand. One is food, second is pharma, third is logistic, fourth is any service you can add on. But from top to last three, there is a food and pharma industry is in big demand. Especially the food industry, the luxury food is not in demand. The basic staple food is in the demand. So grocery business is the core demand of this pandemic scenario. If we do a survey for the grocery business in India, you can see on my screen that what is the scope by the 2022 in US dollars as well as Indian rupees. 5.5 lakh crores industry will be of the grocery food business. And what does the trend indicates? पूरे अगर हम इसको देखें तो क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने फूड इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा चेंज दिया है? So there is a changing consumers purchasing patterns. Now people are want to purchase from their mobile apps, from their browsers. They want to purchase from their offices. They don't want to go to grocery stores and they don't want to waste their time, and they want to spend the time with the family, and they want everything within a good price bracket, as well as ease on the they can order from the their online platforms. So convenience is there. Online offline players entering app-based online spaces. Many offline players are coming into the online based spaces. So you can see there are two kind of industry leaders are there. One are leading with the offline mode, and one are leading with the online mode. But here we are pleased to inform you that we are starting with the both the platform at a time. So whoever wants to enter with the Wonder Food Mart can join the offline and online model with a single step. So business model is marketplace model and inventory based model are already in the vogue, and internet penetration. So you can see the power of social media, you can see the power of digital marketing. So all these factors are indicative that we should go for the grocery market either offline or online. And what is India searching for on Google? If we do a survey in the period of this COVID scenario, so what were the search results? So you can see on my screen that 1 out of 2 was searching consumer wanted how brands are responding to situation is the main search strings are pharmacy near me, internet provider near me, ration ki dukaan, online grocery delivery near me. So you can see the 550% is growth in the grocery delivery near me. So this is the highest searching into this market. Related search also generated interest, chemist shop near me, grocery door delivery near me. So there is also indicative if there is a solution provider who giving offline solution as well as online solution can go upwards toward both the way. QR code payment. So how to change UPI pin. So you can see what people are searching on the net. And if we can provide them solution for their problems or their searches, we can do any kind of business. Why Wonder Food Mart? So about this scenario, the question arises, why Wonder Food Mart? Why not some other brand? So I would like to make a light on these few USPs of the Wonder Food Mart, a profitable business, because it's a unique business idea. Why it is unique? Everybody is opening kirana dukan, everybody is opening the grocery store. The unique business idea USP is the freshness. We have patented technology for the freshest ground atta as well as spices. We have the machines
which can customer can get the freshest atta ground in front of his and her own eyes, as well as they can order from the ease of their applications. We have an application for online deliveries and as well as online order. So the machine is compatible to take orders directly from the app or web-based solution, and it is a scalable business. Why it is a scalable business? If you have a franchisee of Wonder Food Mart in your local area and you are getting a good response, then you can open a second franchisee in your area, and it can be scaled up to your cities and as well as other cities. So it's not a simple mere kirana dukan, it's a scalable business. So it's a, and one more thing, it's a mix of product and services. It's not just us, we are selling kirana or staple foods to the customer. It is a total approach of the total service. So we are providing products, a very good quality staple products, as well as the services. Service what we are giving them services of IBC. IBC, I will tell you later on what is the IBC. So it's a modern store with the traditional approaches. We have converted the same kirana store into online as well as freshest flour delivery point. So it's a blend of modernity as well as traditional approaches. It is a simple to do business, easy to manage, because we are giving we have worked a lot of on the software and the control part, and the you can say we will deliver the system with the control system, which have a dashboard to the franchisee, dashboard to the main franchisee, master franchisee, and they can manage their store, they can manage their franchisee, their inventory, their customers, their offers. This is all about one dashboard, and dashboard is directly governed with the inventory, the PO, as well as the website. So all in one line. So it's a very unique software developed by our own team, and we are very proud that we are managing all this system on this great software. And food groceries are basic needs and demands never ending. As I told earlier, that food is that industry, it will never face the saturation point, because food is the main requirement of the human being. So the idea curated as present and the future needs of customer. ROI up to 40%. 40% is it may be lesser than 5% or higher than the 10%, because of it depend on the customer segmentation and the area we are opening the store. But we can see if we can manage 200 300 families, then 40% ROI is very easily manageable on this business. Margin up to 20% also. Up to 20% is because average margin is about to I will tell you later on, but to indicative I will let you, it is about 15 to 18% in average. So Wonder Food Mart is equipped with Wonder Atta Mart. So let me tell you what is Wonder Atta Mart. Wonder Atta Mart is a machine which can be ordered to deliver the atta grounded by in front of your eyes. So we have a three option in this machine. We can choose any kind of grains or wheat or multi-grain out of three, and we can choose the weight, we can choose the granulation, even what kind of granulation we want from this machine, and it will be grind the atta and deliver to the customers freshest and the warm kind of atta. And we have a unique idea in this. You can choose your packing options also. If you want a bag, then you will be added a 15 rupees extra. Otherwise you can choose without the major packing expenses. So it will be environment friendly also, as well it will be good to your pocket also. And we have another machine for the spice, and 4 kind of spices can be ground in this machine in front of the customer's eye. So there is a freshest mode of the delivering their spice powders, and we can do turmeric, coriander, gram flour, and chili in this machine.
So there are two USP machines in this concept, Wonder Food Mart. One is Atta Mart and second is Spice Mart. I will show you the pictures afterward. And we have a brand called Shri Hit, and all the grocery are packed with the brand called Shri Hit. And we have complete range of groceries or whatever we are incorporating with Master Trade also. So we have other good brands like Pale, Britannia, any other brand you want is already there. So we have a complete solution in this unit. And we have a mobile application for the Android as well as iOS and website. So we are well equipped with the total solution to the customers, and we are working on it on many other facilities, so we can make, because we have our own IT team, in-house IT team. So we are all the time pursuing that we should modify, we should make more easier, more user friendly UIs and AIs, so customer can be benefited by the mobile apps and all. So finally, we came to the financial part. This is the model cost. We have 7 models into our basket right now. Model 1 to model 6 are on the block, and we can see, you can see on my screen that there is a total investment of 5, 7, 11, 14, 16, and 22 lakhs of rupees. You can have the franchises of the Wonder Food Mart, and in the later screen I will tell you what is for the model 1. So you can see in model 1 you are expending rupees 5 lakhs, but you are getting, so you can see you are getting more than 4,70,000 rupees in lieu of the equipments or the real grocery stuff. So it is all, you are getting all the money back. Okay, so there are many models, 5, 7. In 7 lakhs, we are giving you a digital machine with atta grinding machine with manual feed, and in 16 lakh model 5, which is most popular model of our franchisee model. We have 8 stores right now, and we are going to open more stores in Delhi NCR as well as UK. We have 1 store in Dubai also. So the model number 5 is the most popular. In 16 lakhs, you will get a digital machine with 3 grain auto feed, auto managed machine with web enability, and the Android application based machine is there. And you can see Shri Hit and other trade products is there. Display racks and counter is there. POS means point of sale machine, which includes the computer, which includes the printer, bar scanners, and all the system and software required. The POS system is there, and the other store equipment like many other things are there, like projected returns investment on the model 1 to model 6. You can see on the screen the 60% up to 42.25 ROI is there, and model 1 is about to open a grocery store, so it is very easy to handle, and we will provide you everything, racks, material, POS, so you can open the store. But model 5 is more popular, so I will pursue you to go for the, because USP is the freshness. So you can provide your customer freshly ground flour, atta, and freshly ground spices. Okay, so there are some policies for the expiry goods and franchisee exit policies. We'll discuss in person because we don't want to make our model is pressure technique. So it is by invitation. You can go through our policies. We are 55 years old company based on the ethical business. So, and WFM franchisees royalty and margins are there 18 to 20%. As I told you, average margin is there.
royalty is 5%. What is royalty? Royalty is that whatever you sell in your store, we will charge 5% royalty. How we can cooperate you for first 1 or 2 months by not getting these royalties, as it is a time for gestation and it's time for the establishment. So after that, we will demand you 5% royalty as our service charges, because in other we don't have any margins. We are giving you services to establish your store, and we want to establish the complete fresh ground store, fresh flower store around the NCR. So finally, your after royalty, your margin is 13 to 15%. This is average margin. You can get more than 15 even in some products, but it is the average margin. So we can talk about it's depend on the product to product. Some products are having less than 13 margin also, but by selling these goods in average by monthly, you can get 13 to 15% margin on your sales. This is all about Wonder Food Mart in general. If now, if you have any queries, I am here to answer. Thank you so much, RS Chialji, and आपने बहुत अच्छा presentation है दिया. And friends, I would also, before we pick any questions, I will also request if you have any questions on the business model, kindly put in the Q&A box जो आप नीचे आप देख रहे हैं. We'll take these questions from Chialji. And just to also give a brief introduction, I think he has been very modest in giving his introduction. Wonder Food Mart, it is a part of Sri Agro Industries, which is a very prominent manufacturer and supplier also of high quality chakki wheat flour, brand multigrain atta, and wheat and spices. And they were rather, one of the first ones to also introduce, a leading player to introduce the flour mills and emery stones 50 years back, 55 years back, way back in 1970s. When they also had a big competition from the Danish products. So overall, it is a very integrated group, and they also run a milling technology school in India. So they have been in this industry and almost 55 years of experience in the milling industry alone. And overall, like Chialji mentioned, grocery is one of the biggest consumption in India, and it accounts for almost half of the country's retail consumption. When I say retail consumption, 48% जो retail consumption होता है, so grocery forms a very, very important contribution. And the overall size of the market is also now becoming more and more organized, with organized players coming in. And this is almost 20 lakh crore market, where grocery is concerned. Highly, I would say, scalable model. And overall, there are 6 models which they have presented, from 6 lakhs as a 5 lakhs as a investment to about 22 lakhs of a business model. And the overall term of the agreement in all these models is about 3 years. So Chialji, मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे लूंगी और मैं रिक्वेस्ट करूंगी फ्रेंड्स, जो भी आपके भी क्वेश्चंस हैं आप प्लीज इसमें लिख सकते हैं. We'll take it up with the company. And to start off with, Chialji, आपने जो 6 मॉडल्स की हमने बात की है, आई थिंक यू इवन डिस्क्राइब्ड व्हाट गोज इन एवरी मॉडल. एंड सबसे छोटा जो मॉडल है 5 लाख वाला, उसमें हम इक्विपमेंट नहीं डालते हैं. एंड बाकी सारे मॉडल्स में हमें एक इक्विपमेंट है जो सबका एक दैट्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस. सो इफ यू टॉक अबाउट दीज मॉडल्स, क्या हमारा एरिया के रिक्वायरमेंट रहता है सब? बिकॉज आपने जो मॉडल्स बताए इसमें इन्वेस्टमेंट हमने देखी, बट एरिया आई एम नॉट टू श्योर इफ वी कवर्ड ऑन द एरिया आल्सो. तो अगर एरिया भी समझ सकें, क्या हमारा एरिया रहता है टिपिकली? देखिए, मैंने अपनी पीपीटी में एरिया भी दिखाया था, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि जो मॉडल नंबर 1 है वो बेसिकली एक ग्रोसरी स्टोर है. और ग्रोसरी स्टोर का जो जनरल साइज होता है वो साइज इसका हो सकता है. एंड अगर उसको हम सम अप करें तो तकरीबन 200 स्क्वायर फीट की जगह मॉडल 1 के लिए जरूरी है. मॉडल 1 से लेके मॉडल 3 तक 200 स्क्वायर फीट में हम लोग आसानी से अकोमोडेट कर सकते हैं. इसके बाद के जो मॉडल्स हैं वो तकरीबन 200 से ज्यादा, यानी कि तकरीबन 250 स्क्वायर फीट से लेकर के 450 स्क्वायर फीट तक की जगह उसमें चाहिए होती है, क्योंकि मशीन जो है वो 6 फीट बाय 8 फीट का एरिया फ्रेश ग्राउंड मशीन को चाहिए होता है. फिर रैक्स है, काउंटर्स है, इन सबको रखने के लिए. और फिर इसका एरिया, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो सेल्फ सर्विस का है. तो कस्टमर स्टोर के अंदर आता है और वो रैक्स में अपना सामान देखता है, तो उसको ट्रॉली भी मिलती है, उस ट्रॉली में वो अपना सामान डालता है. तो थोड़ा सा उसको घूमने का एरिया भी हम लोग उसमें देते हैं. मशीन के अराउंड जाने का मौका हम उसको देते हैं ताकि वो उस मशीन को देखे, वो फील ले
कि उसका आटा उसके सामने पिस रहा है और एक डिजिटल टेक्नोलॉजी से पिस रहा है जिसमें कोई ह्यूमन इंटरवेन नहीं है, तो वो उसका ट्रस्ट लेवल उस मशीन पे बढ़ जाता है। तो जब तक उसका आटा पिस रहा होता है तब तक वो अपनी दूसरी अदर ग्रोसरीज को परचेज कर लेता है। तो जो एरिया का स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, मॉडल नंबर 4 से लेकर के 6 तक आप मान लीजिए कि अराउंड जो है 250 से 450 स्क्वायर फीट तक, और उसके नीचे जो है 200 स्क्वायर फीट की जगह मोर देन सफिशिएंट है। और अभी एक क्वेश्चन चंदन जी ने पूछा था कि इसमें फोको मॉडल नहीं है क्या? देखिए, ये फोको मॉडल नहीं है, इसके अंदर फ्रेंचाइजी ओन्ड और फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड मॉडल ही हमने प्रोवाइड किए हैं। और अगर इसके अंदर कोई ऐसी जरूरत होती है तो वी कैन डिस्कस 1 to 1। तो चंदन जी से मेरा निवेदन है कि वो हमसे बात करें, FI से बात करें, और उस पर हम लोग जो है डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरीके से हम उनको और मदद कर सकते हैं। जैसे OnePlus नोड करके हमारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने भी लिखा है कि फ्रेंचाइजी की हमारे हाउ मेनी फ्रेंचाइजी आर एग्जिस्टिंग। हम लोग की अभी 8 फ्रेंचाइजीज राजस्थान में काम कर रही है, एक चंडीगढ़ में काम कर रही है विद इन दी 8, तो और एक दुबई में काम कर रही है, यानी 6 राजस्थान में है, एक चंडीगढ़ में है और एक जो है दुबई में है। अभी हम लोगों ने स्टेप इन किया है एंड इट इज अ गुड नंबर टू स्टार्ट विद दिस कॉन्सेप्ट। एंड नाउ वी आर ओपनिंग NCR। अभी तक हमने NCR में कोई फ्रेंचाइजी दी नहीं है, लेकिन फ्रेंचाइजी इंडिया इज ऑथराइज्ड पार्टनर टू मेक फ्रेंचाइजी इन दिल्ली एंड NCR एरिया। सो अब हम लोग जो है NCR एरिया में शुरुआत कर रहे हैं और आपका स्वागत है अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो। और डज द कंपनी हैज एनी मार्केट स्टडी फॉर हरियाणा मार्केट? हमने हरियाणा और पंजाब के मार्केट की स्टडी की है और वहां पे ऑलरेडी बहुत अच्छे स्कोप के साथ कुछ स्टोर्स चल रहे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वहां पर बहुत बड़ा काम इसमें किया जा सकता है। और हमने वहां ये देखा है कि जो बड़े स्टोर्स वहां पे काम कर रहे हैं उनके पास ऑनलाइन सॉल्यूशंस नहीं है, तो हम जो है ऑनलाइन सॉल्यूशंस के साथ आ सकते हैं। हमने एक सर्वे कराया, उसमें देखा कि उनके पास फ्रेश आटे का भी कोई कंसेप्ट नहीं है, वो केवल पैकेज्ड आटा ही बेचते हैं। तो ये 2 यूनिक कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे फ्रेंचाइजी को ज्यादा वाइबल बनाते हैं कंपटीशन के थ्रू। तो हम लोग जो है हरियाणा और पंजाब के लिए भी ओपन हो सकते हैं और हमने स्टडी की है और वो बहुत अच्छा मार्केट वहां पर है। और एरिया ऑफ एक्सपांशन इज ओनली अराउंड NCR एंड साउथ इंडिया ऑल्सो। हालांकि अभी हमारा एरिया NCR का ही हमने सोचा है, अगर साउथ में भी हम लोग जल्दी ही प्लान करेंगे साउथ इंडिया में भी आने का, लेकिन वो एक प्लानिंग के साथ आएंगे बिकॉज इसमें लॉजिस्टिक एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। इट इज नॉट अबाउट दैट कि 1 or 2 franchisees are there and we are about to open the franchisee, though we want to open the franchisee all over India, even we are focusing the globe, so now we are talking about the England also. So टारगेट अभी पूरा इंडिया है, लेकिन अभी फोकस जो है NCR पर है। तो NCR में क्योंकि हम लोग लॉजिस्टिक और बाकी सब चीजों के अरेंजमेंट को हम लोग देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग काम कर लेंगे। मिस्टर जयदीप नायक हैं, जयदीप नायक ने ही पूछा है FMCG गुड्स एज वेल एज इट विल बी लिमिटेड टू फ्लावर। नहीं, ये पूरा FMCG का स्टोर है और इसमें मास्टर ट्रेड भी शामिल है, यानी कि हम लोग आपको जो स्टेपल है लाइक ऑल पल्सेस, ऑल स्पाइसेस, घी, डेयरी प्रोडक्ट्स, एनी अदर थिंग, उसको हमें आपको शहीद ब्रांड में भी देते हैं, एज वेल एज लाइक बिस्किट्स एंड अदर नमकीन, जो भी FMCG के जो आइटम्स है वो हम मास्टर ट्रेड करके आपको उसका भी पूरा देते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आप कौन से मॉडल में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो कंप्लीट FMCG स्टोर भी हम आपको इसमें खोल के देते हैं। अनूप कुमार जी कह रहे हैं व्हाट सपोर्ट। हाँ बताइए। आई वांटेड टू पिक, अगर हम पे ही रहे, अगर हम समझे एक स्टोर का टिपिकल SKU हम क्या देते हैं, अगर छोटे स्टोर से बड़े स्टोर की हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे कैटेगरीज है जो हम करते हैं, तो छोटे स्टोर में कुछ कैटेगरीज कम हो जाती है, हम SKU कम करते हैं, पहली चीज। नहीं, उसमें SKUs कम नहीं होते हैं, उसमें क्वांटिटी कम हो जाती है। उसमें जैसे मान लीजिए कि हायर मॉडल है, उसमें हमें हर SKU के 20 पीस दे रहे हैं, इसमें हम किसी में 15 कर देंगे, किसी में 10 कर देंगे। और देखिए 10 का लिमिटेशन केवल इसलिए कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमको कम करना है, और जो भी आ जाए, ये पूरा हमारा जो सिस्टम है वो डैशबोर्ड बेस्ड सिस्टम है। जैसे ही मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि जैसे एक फ्रेंचाइजी उस गुड्स को रिसीव करता है, वो अपने बारकोड स्कैनर से सारे गुड्स की रिसीव्ड एंट्री करता है और वो ऑटोमेटिकली उसके इन्वेंट्री सिस्टम में चला जाता है। अब 10 आइटम उसके पास है और 3 का बिल हो गया, तो ऑटोमेटिकली उसकी इन्वेंट्री में 7 आइटम नजर आएंगे। अब मान लीजिए कि हमने 5 नंबर पे रीऑर्डर स्टेटस डाल रखा है,
तो जैसे ही उस 2 बिल और कटेंगे, वो गुड्स का स्टेटस 5 पीस का आते ही वो गुड्स जो है ऑटोमेटिकली वार्निंग आ जाएगा आपका डैशबोर्ड पे कि ये जो है परचेज ऑर्डर के लेवल पे आ गया। अगर परचेज ऑर्डर बनाना है, यस करेंगे तो परचेज ऑर्डर की लिस्ट में जाके शामिल हो जाएगा। मतलब रीऑर्डर परचेज करना भी बहुत इजी है हमारे इस सेटअप के अंदर। ओके, एंड हमारा रिप्लेनिशमेंट टाइम कितना रहता है इसमें सर? जब तक एक स्टोर को एक सारा जितनी भी आपका कैटेगरीज है वो मिलती हैं, क्या उसमें रिप्लेनिश टाइम क्या रहता है आपकी तरफ से? देखिए, इसके दो एरिया हो गए टाइम के। एक तो एरिया हो गया कि हम लोग फर्स्ट सप्लाई में कितना टाइम लेते हैं, तो वो हाँ जी। ऑलमोस्ट 7 to 10 डेज हो गया जिसमें हम लोग उनका स्टोर पूरा एस्टेब्लिश कर देते हैं। इसके बाद क्योंकि उनकी इन्वेंट्री और उनका डैशबोर्ड जो है वो उनको ऑल द टाइम सारी चीजों को ऑनलाइन बना के रखता है। इवन हमारा सिस्टम कई बार उनको ईमेल करता है कि दिस आइटम इज शॉर्ट इन योर स्टोर, काइंडली पुट द ऑर्डर। तो हम लोग, हमारे पास स्टॉक है, हम लोग उनके ऑर्डर्स को लेते हैं। अभी डिपेंड करता है लॉजिस्टिक के ऊपर, कई बार क्योंकि क्वांटम छोटा है और यूं समझ लीजिए कि कोरियर से जा रहा है, तो वो कोरियर का टाइम लीड टाइम हो गया। अभी इतना आइटम है कि सीधा टेम्पो या ट्रक से जा रहा है, तो वो उस तरीके, तो वो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे आउटर एरिया उस पे, उससे भी डिपेंड करता है वो। ओके, एंड इसमें श्योर जी आपने बोला ऑनलाइन भी है आपका, एंड मे बी यू नो आफ्टर अ व्हाइल आई विल आल्सो टेक मे बी ऑल आवर विजिटर्स हु हैव कम इन टुडे टू द वेबसाइट आल्सो, एंड यू कैन सी ऑल द कैटेगरीज व्हिच द कंपनी इज डूइंग। श्योर जी, एक जो हमारा इन्वेंटरी होगा, इसका जो सप्लाई होगा, यू विल बी सिंगल पॉइंट कांटेक्ट फॉर ऑल द इन्वेंटरी सप्लाई, या हम लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ टाई अप कराते हैं पार्टनर्स का? नहीं, हम लोग डायरेक्ट सप्लाई करेंगे। और अगर जैसे मान लीजिए कि ब्रिटानिया का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं या अमूल का हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो आज अमूल का हमने टाई अप किया हुआ है, ठीक है, हम आपको फर्स्ट सप्लाई में आपको सारे एसकेयूज आपको दे देते हैं। अब हमको ऐसा लगता है कि यहाँ से भेजना इज मोर टिपिकल, तो हम उसको लाइजन करेंगे कि दिल्ली या एनसीआर का अमूल का या ब्रिटानिया के डीलर आपको डायरेक्ट डिलीवर कर दे। लेकिन उसके लिए ऑर्डर आपको हमको करना पड़ेगा। हम खुद डिलीवर करते हैं या वहां के लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से डिलीवर कराते हैं। जो भी सस्ता पड़े, जो भी अच्छा पड़े, उस मॉडल के साथ हम आगे बढ़ जाएंगे। कॉस्टिंग का इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। क्यों इम्पैक्ट नहीं है? बिकॉज लॉजिस्टिक पार्ट जो सेव हो रहा है वो वैसे भी आपके पार्ट पे ही सेव हो रहा है, फ्रेंचाइजी के पार्ट पे सेव हो रहा है। तो जितना इजी हो सकता है उतना इजी हम उसमें करेंगे उसको। ठीक है। एंड श्रेया जी, एक जो मैं क्वेश्चन, हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जरूर बात की, अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के ऊपर भी कुछ डिस्कशन कर सकें, क्या टिपिकल खर्चा रहता है एक स्टोर का, क्या किराया? बिकॉज ये जो मार्जिन का बिजनेस है, ये मार्जिन भले आप हमारे कम होते हैं, बट ये वॉल्यूम का बिजनेस है, इसमें वॉल्यूम्स हमारी ज्यादा होनी चाहिए, और हाई रेंटल्स पे बिजनेस सस्टेन नहीं करता है। तो क्या गाइडलाइंस है आपकी, क्या रेंटल होना चाहिए, और क्या मैन पावर चाहिए होगी हमें इन 6 मॉडल में? देखिए, इसके अंदर क्या है कि जब हम छोटे मॉडल्स पे जाते हैं, यानी 5 लाख या 7 लाख के मॉडल पे जाते हैं, तो हम उसमें मान के चलते हैं कि ये बिजनेस जो है ओनर खुद रन करेगा। वो किसी ऑपरेटर को बिठा के उस बिजनेस को नहीं करेगा, वो खुद रन करेगा। तो उसमें सैलरी पार्ट जो है वो इंक्लूडेड है उसका, मान लीजिए। अब बात आती है मेजर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का। तो मेजर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सबसे ऊपर आता है शॉप का किराया। अब किराया जो है वो डिपेंड करता है कि वो अगर बहुत ज्यादा है तो डेफिनेटली वहां पर फुटफॉल भी ज्यादा होगा, और अगर किराया कम है तो फुटफॉल कम होगा, या रेजिडेंशियल कॉलोनी में है। तो ये सारी चीजें फ्रेंचाइजी को थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए कि किराया वर्सेस फुटफॉलिंग जो है वो एक एप्रोप्रिएट लेवल के ऊपर हो। ऐसा भी ना किराया बहुत कम है और फुटफॉलिंग ही नहीं है, तो उस कम किराए का भी फायदा नहीं मिलने वाला। और किराया और फुटफॉलिंग का जहां पर इक्विलिब्रियम बनता है, उसी जगह पर हम लोग को जाना चाहिए। और डेफिनेटली एक ग्रोसरी स्टोर के लिए 15 से 18 हजार का किराया एक एप्रोप्रिएट किराया है। तो हम मान के चलते हैं कि एक 200 स्क्वायर फीट की दुकान जो है एनसीआर एरिया के अंदर अराउंड 25 से 30 हजार रुपए की मिलती है। तो अब ये हो गया कि सब 18,000 और 20,000, ये 25,000 का किराया मिल रहा है, तो ये 7,000 रुपए जो ज्यादा लग रहे हैं, इसका क्या होगा? तो डेफिनेटली आप उस एरिया में, जिस एरिया में फुटफॉल ज्यादा, वहां दुकान किराए पे ले रहे हो, तो मुश्किल से 10-20 ग्राहकों से आप, 30 ग्राहक से आप जो है वो डिफरेंस ऑफ एरिया को, डिफरेंस ऑफ रेंट को आप जो है कवर कर सकते हो। सेकंड मेजर पार्ट हो गया इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर ऑपरेटिंग थिंग्स। अगर आप आटे की मशीन के साथ लगाते हो तो उसके अंदर मशीन में की जो आरओआई है, उसके अंदर उसका बिजली का, यानी कि मैं मोटे तौर पे बताऊं कि जैसे मान लीजिए कि 10 किलो आटा हम किसी को पीस के देते हैं, तो हमें उसमें कितना रुपया बचेगा, ये मोटे तौर पर है। तो उसकी मशीन की आरओआई के अंदर उस मशीन का इंटरेस्ट, उस मशीन का
ऑपरेटर का सैलरी उसका वो सारा लेके हमने किया है, तो अराउंड 5-6 रुपए किलो आपको आराम से उसके अंदर बच जाता है। तो इट इज अ गुड अमाउंट। अगर हम देखें तो आज अगर हम 10 किलो की थैली किसी बड़े ब्रांड की बेचते हैं तो बामुश्किल 12 से 15 रुपए हमको मिलते हैं किसी भी ग्रोसरी स्टोर वाले को, और इसके अंदर उसको सीधा 30 से 50 रुपए किलो, 50 रुपए सॉरी किलो नहीं, 10 किलो के पैकेट पे उसको मिल रहा है। तो वो डिस्काउंट करके अपने कस्टमर को, वो हो सकता है कि वो के साथ मैं 10 रुपए और डिस्काउंट दे दूंगा, कस्टमर को 15 रुपए डिस्काउंट दे दूंगा, तो वो फुटफॉल कवर कर सकता है। तो 5 रुपए केजी आटे के ऊपर इज अ वेरी गुड मार्जिन ऑन फ्रेश आटा। हाँ, और दूसरा सब्सक्राइबर बिजनेस भी है, जो एक बार लेता है आपको हर महीने उसकी डिमांड आपकी आती है। एक बार जिसने फ्रेश आटा आपसे ले लिया और उसको हर चीज पसंद आ गई, तो वो घर बैठे बैठे आपको ऑर्डर करेगा, उसको स्टोर पे भी आने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने उसको ऐप प्रोवाइड कराई है, आपने उसको वेब प्रोवाइड कराई है। राइट राइट जी। अगर हम ऑनलाइन की बात करें, क्योंकि आपके ऑनलाइन के ऊपर भी काफी डिमांड आती है, और जहां तक ऑनलाइन का सवाल है, जो हमारा लोकल स्टोर होगा वो फुलफिलमेंट करेगा कोई भी ऑनलाइन डिमांड आपके पास आती है, या आपका कोई और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं जहां से डिमांड? नहीं, इसके अंदर क्या होगा, इसमें हम लोग जो हमारा जो तरीका है, जैसे मान लीजिए कि अभी हमारा सेंटर जो है, हेड ऑफिस जो है अजमेर में है, राजस्थान में है। अभी एनसीआर में हम लोग स्टोर खोलते हैं, तो जब हम स्टोर खोलेंगे तो हम उसका एक एरिया जो है अलोकेट करेंगे। उस एरिया के से जो भी डिमांड आएगी वो ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम जो है उस एरिया को फॉरवर्ड करेगा, उस एरिया के स्टोर को फॉरवर्ड करेगा। लेकिन कोई कस्टमर है, जैसे मान लीजिए कि वो कस्टमर जो है रहता धोला कुआं के आसपास है, मुझे एनसीआर के बहुत ज्यादा नाम मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं और वो ऑफिस जाता है करोल बाग में, और इसके बिटवीन में स्टोर पड़ता है, और एक स्टोर उसके जो है धौला कुआं में भी पड़ता है। अब उसकी चॉइस है, वो कहता है धौला कुआं के स्टोर के लिए मुझे बाय चॉइस जाना पड़ता है, जबकि मैं जाता हूं तो वो मेरे ऑन द वे आता है। तो अब यहाँ पर दोनों स्टोर ओनर ये कह सकते हैं कि साहब ये रेजिडेंट तो धौला कुआं का है और ये लेना करोल बाग में आता है, तो ये दोनों चीज कैसे पॉसिबल है? तो देखिए, कस्टमर इज द किंग। हमने कस्टमर के ऊपर छोड़ दिया कि वो किसको अपना मेन स्टोर बनाना चाहता है। जब हम कस्टमर पहली बार लॉग इन करता है तो वो लॉग इन करके उससे पूछता है चूज योर स्टोर। अब अगर कस्टमर ने जो स्टोर चूज कर लिया तो हम जो स्पेसिफिक एरिया की टेरिटरी है उसको हमने कस्टमर के ऊपर छोड़ दिया है। अगर कस्टमर ने चूज नहीं किया, कस्टमर ने मान लो धौला कुआं चूज किया, अब वो कस्टमर ऑनलाइन ऑर्डर देता है तो वो ऑटोमेटिकली धौला कुआं वाले स्टोर के पास चला जाएगा। वो एआई बेस्ड है, मतलब उसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि भाई मेरे ऑर्डर किसी और को पास तो नहीं हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इसमें अगर मैं बात करूं आपके लोकेशंस जो हम देखना चाहते हैं, आपने भी बोला नॉर्थ हम देख रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में हमारी अच्छी प्रेजेंस है। चंडीगढ़ में आई सॉ वन ऑफ आवर पार्टनर्स आल्सो आस्किंग, सो मेरे ख्याल से ज़ुरुखपुर में है हमारा एक आउटलेट जो वहाँ पे अभी फिलहाल है। एक आपका बड़ा आउटलेट इंटरनेशनली दुबई में भी चल रहा है। तो ये नॉर्थ हमारा भी इनिशियली हमारा फोकस एरिया रहेगा, क्योंकि मैं कुछ और लोकेशंस भी देख रही थी जहाँ से इंक्वायरीज लोग पूछ रहे हैं। So North will be our initial, focus area, including Rajasthan, obviously, जहाँ पे current हमारा penetration है। इसमें चिराग जी मैं 2-3 क्वेश्चंस और जो लेना चाहूंगी। आई एम सीइंग सम क्वेश्चंस व्हिच आर आल्सो कमिंग फ्रॉम द ऑडियंस। कुछ आप ले चुके हैं, कुछ मैं और देख रही हूँ, मैं एक-एक करके आपसे पूछना चाहूंगी। We have Mr. Rajesh Ratan, he is also one of our partners from चंडीगढ़। तो पूछना चाह रहे हैं कि हमारा कोई मास्टर फ्रेंचाइज का भी मॉडल है इसमें? अगर कोई एक पार्टनर बड़ा लोकेशन या बड़ा पार्टनर बन के पूरी टेरिटरी अगर डेवलप करना चाहते हैं, तो वो एक ऑप्शन रहेगा आगे देने के लिए? हाँ जी राजेश रतन जी, चंडीगढ़ का जो हमारा स्टोर है वो एक फ्रेंचाइजी स्टोर है। अगर आप फ्रेंचाइजी स्टोर में चंडीगढ़ में, क्योंकि बहुत स्कोप है, बहुत बड़ा एरिया चंडीगढ़ का है, तो वहां पर मल्टीपल फ्रेंचाइजी स्टोर्स भी खुल सकते हैं। तो जब मल्टीपल फ्रेंचाइजी स्टोर कोई एक जना खोलेगा तो डेफिनेटली जिसके भी ज्यादा स्टोर होंगे हम प्रेफर करेंगे कि हम उसी को मास्टर फ्रेंचाइजी दे दें। तो मास्टर फ्रेंचाइजी चंडीगढ़ के लिए ओपन है, हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं। एंड एक और क्वेश्चन है जो मैं लेना चाहती हूँ, मशीन्स के ऊपर है कि इसमें व्हाट काइंड ऑफ मशीन, जो आटा चक्की हम देते हैं, ये क्या दीज आर प्रोप्राइटरी मशीन जो हम देते हैं हर एक आउटलेट पे? हाँ जी, ये प्रोप्राइटरी मशीन है। देखिए, आटा बनाने की जो चक्की है वो एक प्रोप्राइटरी मशीन नहीं है, उसके बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है। लेकिन उसका लिमिटेशन क्या है? उसका लिमिटेशन ये है कि वो ओपन होती हैं, आवाज बहुत करती हैं, हाइजेनिक नहीं होती हैं, मतलब उसमें बहुत सारी, उसमें तकरीबन 100% वो मैनुअल इंटरफेस से चलती है।
उसमें गेहूं आपको तोलना पड़ता है, तोल के उसके ऊपर में डालना पड़ता है, फिर सेट करना पड़ता है कि वो बारीक आटा बनाएगी कि वो बनाएगी, फिर आटा कलेक्ट करना पड़ता है। हमारी जो ये मशीन है बेसिकली इसके अंदर भी स्टोन की चक्की लगी हुई है, लेकिन वो चक्की डिजिटली ऑपरेट होती है। वो कौन सा वीट उसको लेना है, कितना केजी लेना है, वो सारा उसमें ऑटोमेटिकली डिजिटली मैनर के अंदर काम करता है। कस्टमर ने अगर फाइन आटा मांगा है तो फाइन आटे के लिए कितना प्रेशर स्टोन पे डालना है, वो सारा उसमें ऑटोमेटिकली होता है। और ये हमारी प्रोप्राइटरी टेक्निक है, ये इसको हम लोग जो है हम इसके पेटेंट ओनर्स हैं। राइट जी। इसमें एक चीज और है जो क्रेडिट लाइन पे आती है, बिकॉज इसमें आपको जो इन्वेंट्री है आपको रियल टाइम रिप्लेनिश करनी पड़ती है आउटलेट पे। सो आर वी ऑफरिंग एनी क्रेडिट लाइन, ये या कोई क्रेडिट नहीं होता? हाउ डज इट वर्क फॉर अ फ्रेंचाइजी? नहीं, हमने इसमें क्रेडिट लाइन का इसलिए नहीं रखा बिकॉज मार्जिन्स आर वेरी थिन, और उसके अंदर क्या है कि क्योंकि जब कस्टमर ने एक बार पैसा दिया और वो सेल करता है, तो जो सेल का अमाउंट है वही उसको वापस री इन्वेस्ट करना है। करेक्ट। तो इसमें क्या होता है, हम कितना वर्किंग कैपिटल रहना चाहिए आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? और क्योंकि अलग अलग फॉर्मेट है, छोटे फॉर्मेट में छोटा आपका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट रहता है, बट कितना वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट रखना चाहिए एक पार्टनर को? देखिए, इसके अंदर मॉडल 1 to मॉडल 3 तो मैं बोलूंगा कि 1 से 1.5 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल बहुत है, और मॉडल 4 से लेकर के 4 और 5 के लिए तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। Right. Okay. And how many stores we have covered? All locations. Great. And Georgie, इसमें हमारा जैसे डिस्काउंटिंग हम करते हैं, कोई डील्स हम करते हैं, क्योंकि आपकी वेबसाइट पे भी कुछ डील्स चलती हैं, तो ये सेम डील्स हमारी लोकेशंस पे भी चलती हैं या डिफरेंट डील्स हैं? हाँ, इसमें जो ऑफर्स हैं वो 2 तरीके से होते हैं। एक ऑफर होता है ऑनलाइन कस्टमर्स के लिए ऑफर। अब वो ऑनलाइन कस्टमर जिस भी एरिया में फॉल कर रहा है उस एरिया पे उसको, क्योंकि उसने ऑनलाइन ऑर्डर दिया, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि 10 किलो के आटे के ऊपर 1 किलो की नमक की थैली फ्री, ये ऑनलाइन के अंदर जो है वो मिल रहा है। अब ऑफलाइन का कस्टमर जाएगा तो वो भी ये डिमांड करेगा कि साहब मेरे को 1 किलो की थैली। तो हमारा कोशिश ये रहता है कि ऑनलाइन ऑफलाइन जो है वो दोनों के ऑफर तकरीबन एक जैसे हो, लेकिन कई बार हम उसको अलग भी करते हैं। क्यों अलग करते हैं? क्योंकि हमारा फोर्स होता है कि हमको ऑनलाइन ऑर्डर्स बढ़ाने हैं या हमको फुटफॉल बढ़ाना है, और ये ऑफर्स हम जो है यहाँ से हमारा जो सेंट्रल टीम है वो बना के फ्रेंचाइजीज को देती है, और वो वेब के ऊपर भी उसको अरेंज करती है, एज वेल एज वो हमारे फ्रेंचाइजी को भी पहले से मैसेज देती है कि ये अब ऑफर आपको अपने प्रोडक्ट पे देना है। और ये ऑफर जो है कई तरीके से होता है। एक तरीके से होता है कि ये ऑफर कंप्लीटली कंपनी की तरफ से है, ये ऑफर कंप्लीटली जो ब्रांड है उसकी तरफ से है, ये ऑफर 50-50 रेशो पे है, ये ऑफर किसी और रेशो पे है। तो ये मल्टीपल ऑफर्स मल्टीपल तरीके से चलते हैं, लेकिन वो ऑफर्स हम डायरेक्ट भी देते हैं, और कस्टमर मतलब जो फ्रेंचाइजी है वो भी कुछ ऑफर अपने बना के अपने स्टोर पे दे देता है, और वो कहता है कि सर ये स्टोर जो है, जैसे मान लीजिए आज हम किसी को बोलें कि आपका 15% मार्जिन है, आप इसको 5% का डिस्काउंट दे दीजिए, तो हम ये नहीं कहते, वो कहता है कि सर मैं इसको 5% कम पे बेच लूंगा, आप इसका मेरे स्टोर के ऊपर ये डिस्काउंट दिखा दीजिए। तो हम दिखा दे, क्योंकि हमारा जो वेबसाइट है वो मल्टी स्टोर वेबसाइट है, तो वहां पर जो उसके स्टोर का ऑफर, वो उसके स्टोर के जो कस्टमर्स हैं उनको वही ऑफर दिखेगा जो वो चाहता है। राइट। तो ये बहुत स्पेसिफिकली हम लोग इसको डील कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें जो डिस्काउंटिंग होती है फिर उसमें आप भी शेयर करते हैं एज अ कंपनी, दोनों शेयर करते हैं? जो भी सब सारे मॉडल है, हम भी 100% भी शेयर करते हैं, 50-50 भी शेयर करते हैं, और कभी 100% फ्रेंचाइजी भी अपना पूरा पार्ट खुद भी देता है, एज वेल एज जैसे मान लीजिए किसी कंपनी ने हमको, जैसे मान लीजिए पार्ले जी बिस्किट है, एक पर एक फ्री है, तो वो एज इट इज हम लोग उसको पास ऑन कर देते हैं। तो फिर वो ना हमारे पार्ट पर है ना फ्रेंचाइजी के पार्ट पर, वो कंपनी के पार्ट पर है कि कंपनी ने जो स्कीम दी वो एज इट इज हमने कस्टमर्स को पास ऑन कर दी। राइट राइट। वी हैव वन ऑफ आवर कंसल्टेंट्स हैं जयदीप जी फ्रॉम बॉम्बे, पूछना चाहते थे कि जो भी मटेरियल होता है, जैसे अगर हम आटे की बात करें तो, या स्पाइसेस जो ग्राइंड करते हैं आउटलेट पे, so they can, the consumer can also bring their own product and get it grinded, या वो सारा का सारा जो भी प्रोडक्ट होता है हम लोकल आउटलेट से ही परचेज करते हैं? देखिए, ये क्वेश्चन हमसे तकरीबन हर फ्रेंचाइजी लेने वाला पूछता है। इसमें हम लोग जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए हम इन्वेंट्री बेस्ड उसको बना रहे हैं। अभी हमने जो आपको भेजा वो आपकी इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूडेड है, उसका प्लस माइनस जो भी हमारे सिस्टम से बिलिंग हो रही है वो उसके अंदर इंक्लूडेड है।
लेकिन जो आप बाहर से खरीद के बेचेंगे, हमारा उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि सब आप बेच नहीं सकते, लेकिन वो उसका सारा बिलिंग विलिंग सब आपको अलग करना पड़ेगा, वो हमारे सिस्टम में नहीं हो पाएगा। ऐसा आइटम है जिसको हम सेंट्रली अवेलेबल करा सकते हैं, तो पहले आप हमको बताइए, अगर हम अवेलेबल करा सकते हैं तो वो हम आपको अवेलेबल करा देंगे, और अगर हमें लगता है हम अवेलेबल नहीं करा सकते, मान लीजिए किसी शहर का कोई लोकल प्रोडक्ट है और वो वहीं ज्यादा चलता है, वो आसपास के शहरों में नहीं बिकता है, तो हम उनको अलाउ कर देंगे कि भाई वो प्रोडक्ट खरीद के वो कर लें, और अगर हम उसको उनके स्टोर के ऊपर बिलिंग सॉफ्टवेयर में डाल सकेंगे तो हम डाल भी देंगे। ये देखिए क्या होता है कि फ्रेंचाइजी हमारा पार्टनर है, हाँ जी, उसको कितना ईज आउट हम कर सकते हैं वो हम करेंगे, पर कुछ पॉलिसी मैटर्स होते हैं, कुछ बाउंडेशंस होती हैं सॉफ्टवेयर की, उनके कारण कुछ चीजें नहीं कर पाते हैं, तो वो आसानी से एक दूसरे से साथ बैठ के बात की जा सकती है। ठीक है, आई थिंक दैट जी। इज इम्पोर्टेंट। एक सर, आई विल शो योर वेबसाइट आल्सो, आई थिंक लॉट ऑफ पीपल माइट वांट टू गो थ्रू। So friends, this is the website of the company Wonder Food Mart. If you see, you know, the products, these are all the categories which the company is providing, supplying. I think they're almost 20 broad categories, and if you go further down, these are the products, you know, they are multi-brand products which they offer, which includes dairy hai, sweets hai, aapka fresh ground atta, edible oils, packaged spices, dal, beverages, ghee, organic products also. So there's also category for organic products and the other items which are required for a smaller store. And I इसके see अलावा some, भी, अगर इसके अलावा भी फ्रेंचाइजी बोलता है कि सर मैं चाहता हूँ कि ये आइटम और ऐड हो, मेरे पास इसकी अच्छी डिमांड आती है, हाँ तो वो जी, हम ऐड कर देते हैं। ओके। एंड सर, इसमें अगर कोई ऐसी कैटेगरी है जो अभी हम नहीं रख रहे हैं, और कोई लोकल ऐसा सप्लायर है या आपका यू नो मैन्युफैक्चरर जहाँ से लिया जा सकता है, वो भी प्रोविजन देते हैं ऐसी कोई कैटेगरीज में, आप जो तो आप अभी करंटली सर्व नहीं करते हैं? अभी तो हम लोग खुद, हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। देखिए इसके अंदर सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट हम लोग लाना चाहते हैं, वो लाना चाहते हैं फ्रेशनेस और क्वालिटी का। देखिए क्वालिटी की राइट, बात हर कोई करता है, मैं ऐसा नहीं कहता कि दूसरों की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, वो भी डेफिनेटली बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट होंगे, लेकिन मैं मेरे प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। मैं जैसे हमारे कस्टमर्स को एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि मार्केट के अंदर कई बार हमारे पास डिमांड आती है कि साहब हल्दी बाजार में 80 to 90 रुपीज केजी तो ओपन ग्रोसरी स्टोर में मिल जाती है, तो आपकी हल्दी 130 या 120 कैसे है? तो अब मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि हल्दी का रॉ मटेरियल 40 रुपए किलो से शुरू होता है। 40 रुपए किलो से हल्दी का रॉ मटेरियल शुरू होता है, और 100 रुपीज केजी तक मटेरियल आता है। तो 40 रुपए का मटेरियल खरीद के हम 130 रुपए में नहीं बेच रहे हैं, हम बेच रहे हैं ऑप्टिमम लेवल का रॉ मटेरियल खरीद के उसको 130 रुपए में बेच रहे हैं। अब 130 रुपए में क्यों, 100 रुपए का रॉ मटेरियल है, उसके अंदर से भी रिजेक्शन जाएगा, उसके अंदर ग्राइंडिंग के चार्जेस होंगे, पैकिंग होगी, लॉजिस्टिक होगी, आपका मार्जिन होगा, तब जाके कस्टमर को वो 130 रुपए में मिल रही है। तो कहने का मतलब है कि ऑप्टिमम क्वालिटी का रॉ मटेरियल हमारा मेन फोकस है। हमारा मेन फोकस प्राइसिंग नहीं है, हमारा मेन फोकस ये है कि हम कस्टमर्स को, एक बार वो हमारी हल्दी खाएगा, नेक्स्ट टाइम वो इस चीज को समझ जाएगा कि भाई इनकी हल्दी की कुछ स्पेशलिटी है, इनकी मिर्ची की कुछ स्पेशलिटी है। और ये सब कुछ हम बनाते हैं, हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट फैक्ट्री है, डिजिटल फैक्ट्री है, जिसके अंदर आदमी का हाथ नहीं लगता। तो वो सारी चीजें इसलिए हैं क्योंकि हम हाइजेनिक तरीके से बेस्ट क्वालिटी का, यहाँ पे आपको अपने कस्टमर को समझाना पड़ेगा कि सस्ता नहीं है, सबसे अच्छा है हमारा प्रोडक्ट। तो वो गारंटी आप दे सकते हैं आंख बंद करके कि हमारा प्रोडक्ट सबसे अच्छा क्वालिटी के रॉ मटेरियल से बना हुआ है। राइट। यदि एक चीज और मैं क्वेश्चन जो लेना चाहूंगी, विच इज ऑन द, एक है जैसे अगर कोई लॉक इन पीरियड है, 3 साल का हमारा एग्रीमेंट है जो हम साइन करते हैं, तो इसमें कोई लॉक इन पीरियड भी रहता है या एग्जिट हमारे टर्म्स क्या रहते हैं? और दूसरा मैं पूछना चाहूंगी, अगर कोई आगे कंटिन्यू करना चाहता है 3 साल बाद, तो उसके हमारे रिन्यूअल टर्म्स क्या रहते हैं पार्टनर के साथ? देखिए रिन्यूअल टर्म्स बहुत इजी हैं। जो स्टोर ऑलरेडी 3 साल चल रहा है, हम चाहेंगे वो 30 साल तक चले, हम चाहेंगे वो एक स्टोर नहीं बल्कि 10 स्टोर खोले। क्योंकि देखिए क्या होता है कि सारे बिजनेस जो है वो पार्टनर्स से चलते हैं, अकेले से नहीं चलते। तो क्योंकि ऑलरेडी हम जिस बिजनेस में 55 ईयर्स से हमारे 185 डीलर्स ऑल ओवर इंडिया काम कर रहे हैं, और वो 50 ईयर्स पुराने हैं उनमें से बहुत सारे डीलर्स। तो वो क्यों है? क्योंकि हम उनको अपना पार्ट एंड पार्सल मानते हैं। तो आज अगर 3 साल हो गया, तो हम देखिए फेयर प्रैक्टिसेस अगर होंगी, चाहे वो हमारी तरफ से हो चाहे वो फ्रेंचाइजी की तरफ से, तो दोनों को तकलीफ नहीं होगी।
अगर हम फेयर नहीं करेंगे तो उसको तकलीफ होगी, वो फेयर नहीं करेगा तो हमको तकलीफ होगी। तो हमारी तरफ से ऐसा नहीं है, पर एक जनरल टर्म्स के अंदर हम लोग 3 साल का एक री एग्रीमेंट डाला कि भाई आपको री एग्रीमेंट कराना है। री एग्रीमेंट में हमने एक छोटा सा चार्जेस रखा है विच इज वेरी नॉमिनल। तो वो एक यूं समझ लीजिए कि एक लीगल रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि कोई भी एग्रीमेंट इनफाइनाइट नहीं हो सकता, उसका कोई ना कोई टाइम पीरियड होता है। वो उसके लिए है, वो रिन्यू करना चाहते हैं, दे आर वेलकम कि हम उनको रिन्यू करके देंगे। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपने पूछा लॉक इन पीरियड का, तो लॉक इन पीरियड भी इसके अंदर है, अलग अलग मॉडल में अलग अलग है, पर एवरेज के अंदर शायद 12 महीने या 18 महीने का लॉक इन पीरियड है, अलग अलग उसके हिसाब से। तो 12 महीने तक आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट जो आपने किया है उसको आप, क्योंकि हमने आपको बात की इसमें एग्जिट पॉलिसी की, तो देखिए एग्जिट पॉलिसी क्या है। आज हम ये चाहते हैं कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट हो, आपको ऐसा ना लगे कि मैंने कंपनी के साथ काम किया तो कहीं मैं फंस तो नहीं गया। तो उसको करने के लिए हमने एग्जिट पॉलिसी दी है। एग्जिट पॉलिसी का लॉक इन पीरियड है, उसके बाद आप इस फ्रेंचाइजी से एग्जिट कर सकते हैं। अब एग्जिट करेंगे तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन जो है हम आपसे डिस्कस कर लेंगे, वो एग्रीमेंट के अंदर लिखी हुई है, और वो बहुत जनरलाइज्ड वे में है, मतलब उसमें ऐसा नहीं है। वो हम चाहते हैं कि भाई सामने वाला अगर अपना बिजनेस वाइंड अप करना चाहता है तो मिनिमम एक्सपेंसेस के साथ वो जो है अपना बिजनेस को वाइंड अप कर ले। तो जो एक कॉर्पोरेट हाउस की एक थ्योरी हो सकती है, वो थ्योरीज हमने कि जो छोटा इन्वेस्टर है उसको सेफ गार्डिंग करते हुए हमने, मतलब कि उसको नुकसान ना हो, उसको कवर करते हुए हमने एग्जिट पॉलिसी दी है। राइट। एंड ऑल्सो मे बी सम लास्ट क्वेश्चंस जो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, इफ यू कैन बुक मे बी वन डे, एक दिन जब हम सारे अपने जितने भी इन्वेस्टर्स आ जाएं, बहुत लोग आपसे बात करना चाहते हैं। आई हैव आल्सो अ क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर मनोज राघव, ही सेज इज देयर अ पॉसिबिलिटी अगर हम आपका फैक्ट्री टूर भी करना चाहते हैं। We have somebody who's also looking for financial model. Mr. Pranchu Agarwal है सोनीपत से. He's looking for a detailed financial model which we can share with him. And any other area, Chirag sir, any questions जो आपको लग रहा है हमने पिक नहीं किया, अगर आप अपने एंड पे आप लेना चाहते हैं तो। देखिए एक ने क्वेश्चन पूछा जयदीप नायक ने, जो कि बिजनेस फॉर फिजिबल फॉर टियर 3 एंड टियर 4 सिटी। देखिए वेब और एप्लीकेशन जो है अब लिमिटेड टू टियर 1 और टियर 2 नहीं रहा है, वो टियर 2 टियर 3 में भी जा चुका है, इवन गांव-गांव के अंदर चीजें हैं। तो ये हम नहीं कह सकते कि ये स्पेसिफिकली इसी सिटी के लिए है, ये डिपेंड करता है हमारे अपने बिजनेस एंडेवर्स के ऊपर कि हमारा पोटेंशियल क्या है, हम कहाँ माल बेच सकते हैं। देखिए बेचने वाला जंगल में माल बेच लेता है, नहीं बेचने वाला सिटी मॉल में खड़ा होकर के भी माल नहीं बेच सकता। तो बिजनेस की जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो पैशन है, फायर है, वो है तो एनी काइंड ऑफ सिटी में ये खोल सकते हैं। लेकिन इन जनरल अगर हम देखें तो इसकी स्टडी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन ऑर्डर्स का क्या रेशियो है आपकी सिटी के अंदर। अगर ये फैसिलिटी आप देते हैं, बहुत इजी है, आप अपने 100 फ्रेंड से बात करके देख लीजिए कि मैं एक ऐसा स्टोर लाना चाहता हूं जिसके अंदर एप्लीकेशन बेस्ड होगा, आप घर बैठ के ऑर्डर दे सकते हैं, आपको उनके जवाब से पता लग जाएगा कि यहाँ स्टोर खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए। Great, very helpful, Shreya ji. And कौन सा दिन आपको लगता है हम कर सकते हैं? Because we'll invite all the investors who've come in today. एक आपके साथ one-on-one call के लिए अगर कोई visit करना चाहते हैं, राजस्थान में है तो उनसे भी हम बात कर सकते हैं, they can come. But कौन सा एक दिन होगा जहाँ पे आप available रह सकते हैं, जहाँ पे हम कॉल पे लेके आ सकते हैं लोगों को? Today is 22nd, तो या तो हम वीकेंड पे देख सकते हैं, फ्राइडे या सैटरडे तक अगर आप available हैं। I think देखिए ऑनलाइन के लिए तो आई एम अवेलेबल ऑल द वीकडेज, नो प्रॉब्लम, वी कैन मेक एनी डे। और ऑफलाइन विजिट्स के लिए तो क्योंकि कोरोना है और अभी बहुत सारी चीजों को हमको देखना होगा, तो 1-to-1 डिस्कस कर लेंगे कि कुछ को हम हमारा जयपुर का स्टोर भी दिखा सकते हैं, कुछ को चंडीगढ़ का स्टोर दिखा सकते हैं, कुछ को अजमेर का दिखा सकते हैं, या ग्रुप बना करके हम जो है उनको हमारी फैक्ट्री का हम लोग टूर करा सकते हैं। हालांकि हमारी फैक्ट्री का वीडियो टूर भी हम लोग उनको सेंड कर सकते हैं, लेकिन बाय क्या फिजिकल इंस्पेक्शन इज अ फिजिकल इंस्पेक्शन, वो मोर फेथ जनरेट करता है, तो उसके लिए भी दे आर वेलकम। कभी भी आए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, हमारे स्टोर्स को देखें, तो वो 1-to-1 स्टोरीज के हिसाब से हम लोग उसको मैनेज कर लेंगे। और ऑनलाइन के लिए क्योंकि इस सैटरडे संडे का होली का हॉलीडे है, तो फ्रॉम ट्यूसडे टू फ्राइडे हम लोग वापस अगर कभी भी जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, और अदरवाइज फिर नेक्स्ट वीक में आफ्टर ट्यूसडे वी कैन आराम से कर सकते हैं, क्योंकि संडे और मंडे का होली का हॉलीडे।
हाँ जी बिल्कुल। तो हम 26 अब रख लेते हैं। 26 पड़ता है फ्राइडे हम रख सकते हैं, जहाँ पे हम 3-4 दिन नेक्स्ट ले लेते हैं, जहाँ पे सारे हमारी टीम्स बात कर लेगी इन्वेस्टर्स से। हम आपका टाइम लेंगे फ्राइडे का। जी और कुछ बिल्कुल। लोग जो फॉर रीजंस आर नॉट अवेलेबल, वी कैन रीच आउट टू देम फॉर द नेक्स्ट वीक एंड गेट देम ऑन अ कॉल। एंड श्योर। श्योरली बिफोर वी क्लोज, आई विल रिक्वेस्ट, अगर कोई एक लास्ट मैसेज जो आप सब लोगों को देना चाहते हैं, जो आप लाइव भी सुन रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म पे भी आए हैं। देखिए, वंडर फूड मार्ट जो है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग विन विन सिचुएशन टू ऑल रखना चाहते हैं। विन विन सिचुएशन टू ऑल का मतलब ये है कि जो हमारे बिजनेस पार्टनर्स बनते हैं वो भी विन करें, लेकिन हमारे कस्टमर्स भी विन करें। कस्टमर की विनिंग किस में? कस्टमर की विनिंग 1 रुपया 2 रुपया किलो सस्ता करने में नहीं है। कस्टमर की विनिंग है कि उसको रिलायबल सोर्स से रिलायबल फूड क्वालिटी का मटेरियल उसको मिले। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि सभी लोग जो हैं इसमें सिंसियरिटी से, देखिए इसमें हमने लिखा है हमारे पैकेजिंग के ऊपर, सात्विकता इज अवर मंत्रा। तो सात्विकता कहाँ से शुरू होती है? सात्विकता शुरू होती है मन से। अगर मन में हमारे विचार अच्छे हैं, वो विचारों से हमारे कर्म अच्छे हैं, हमारी प्रैक्टिसेस अच्छी है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस अच्छी हैं, हमारी बिजनेस प्रैक्टिसेस अच्छी हैं, और उनके अंदर सबका भला है, तो वो सात्विक है। तो केवल अडल्ट्रेशन से सात्विकता का लेना देना नहीं है। सात्विकता इज ए होल कॉन्सेप्ट। तो हमारी पैकेजिंग के ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, हमारी वेबसाइट पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, सात्विकता इज अवर मंत्रा। तो ये सात्विकता के मंत्र से, शुद्ध मन से सबको, देखिए इसके अंदर मैं राष्ट्र को भी इसलिए जोड़ के देखता हूँ क्योंकि हमारी जो इंडिया की फूड क्वालिटी है बाकी सारे देशों की फूड क्वालिटी के बीच में थोड़ा अंतर है, बिकॉज ऑफ क्या बोलते हैं, स्ट्रिंजेंट क्वालिटी कंट्रोल्स। तो हम सेल्फ डिसिप्लिन्ड लोग हैं, हम लोग लो अबाइडिंग लोग हैं। हमको किसी इंस्पेक्शन अथॉरिटी को आके बोलने की जरूरत नहीं है, हम लोग खुद उन चीजों का ध्यान रखते हैं जो हमारे कस्टमर के हित में है। तो ऑल टुगेदर हम एक ऐसा परिवार बनाए जो आपसे और हमसे और कस्टमर से मिलकर के बनेगा, और हम सब लोग बिजनेस में और बॉडीली अच्छे फूड के लिए हम लोग हेल्दी बिजनेस और हेल्दी बॉडी की तरफ आगे बढ़े। और आई वुड लाइक टू थैंक सोनिया चौधरी जी, जिन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज को मैनेज किया, एंड ऑल द गाइज, सारे जिन लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं, आई एम वेरी हैप्पी टू आंसर। और अच्छा लगा आप लोगों से आज इस मंच पे बात करके, और डेफिनेटली फ्राइडे को हम लोग दोबारा जुड़ने वाले हैं। और आप हमारी कंपनी के बारे में पता कीजिए। फ्लोर मिलिंग में हम लोग एक लीडिंग ब्रांड है। लीडिंग ब्रांड इंडिया में नहीं, अराउंड दी वर्ल्ड हम लोग लीडिंग ब्रांड है। फूड सेक्शन की मशीन्स तो हम सप्लाई कर रहे हैं पिछले 55 सालों से, ठीक है, लोगों को फ्लोर मिलिंग प्लांट, टर्न की सॉल्यूशन, स्पाइस, प्राइस, एनी काइंड ऑफ प्लांट, इवन पतंजलि के प्लांट हमने सप्लाई किए हैं। इवन मैं आपको ये भी कहूंगा कि अगर आप हिंदुस्तान से 100 बड़े ब्रांड का लिस्ट बनाएंगे तो ऊपर के 90 ब्रांड्स को हम सर्व कर रहे हैं। अगर आप वर्ल्ड के बड़े ब्रांड्स की लिस्ट बनाएंगे, 10 ब्रांड्स की लिस्ट बनाएंगे, तो ऊपर के 7 हम लोग उनको सर्व कर रहे हैं। तो वहां पर हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस के साथ, इथिकल बिजनेस के साथ हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। अब क्योंकि इस सेगमेंट में आए हैं तो आप लोगों के साथ मिलके, अच्छा इसमें मेरा एक चीज, जैसे मैंने सात्विकता वर्ड कहा, तो देखिए सात्विकता में प्रॉफिट इज नॉट अ डर्टी वर्ड, लेकिन प्रॉफिट के लिए कुछ भी किया जाएगा वो हमारी कंपनी नहीं है। तो हमारे साथ वो लोग ही जुड़े जिनके मन में सात्विकता के लिए थोड़ा रिस्पेक्ट हो। बिल्कुल हाँ, शियाल जी आपने बहुत अच्छा बात किया। एंड फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी वेरी रिस्पेक्टेड ग्रुप। ये 55 साल पुरानी कंपनी है। अगर आप कुछ सर्च भी करेंगे गूगल पे, उनकी खुद की वेबसाइट पे, यू विल नो द क्रेडिबिलिटी ऑफ द कंपनी, किन किन लोगों को ये सप्लाई करते हैं। जैसे सर ने बताया, नॉट ओनली इंडियन ब्रांड्स, देयर आल्सो सप्लायर्स टू सम ऑफ द ग्लोबल रिस्पेक्टेड रेवर्ड ब्रांड्स। और आज की अगर मैं समझू, यू नो, द एरा ऑफ टुडे, बिजनेसेस आर गोइंग टू कॉम्पीट ऑन वन बिग थिंग व्हिच इज ट्रस्ट. And that is what will help in maintaining very deep relationship with our customers and stakeholders, and this is what the company is working towards. Thank you so much Yalji for coming in, and बहुत अच्छा लगा आपसे interact करके, बात करके. And anyone who's keen to visit even your factories, so we'll request all of you, whoever wants to do that, sir has already accepted कि वो जो भी visit करना चाहते हैं उनका एक tour arrange करेंगे. So thank you so much, sir. We'll take all the queries through our teams, and we'll come back to you on Friday and subsequently in the following week with the investors. Thank you so much. Over to you, Archana. Sure.
So thank you so much, sir, for joining Thank in. We really appreciate the effort by you. Thank you so much, Sonia ma'am, for all your suggestions. We would like to thank our dear participants. Please do reach out to us at our business hotline number, which is 9717683838. We look forward to have maximum participation on 26th of March, which is a discovery day for all of you, where you have a chance to either interact with Mr. Choel either on Zoom call or physical too. Please book your slot at the same business hotline number. You can also reach out to us at different social handles. Information on your screen. You want to revisit all the previously done webinar, we have recorded version for you. Please join us at the Facebook page of Franchise India Brands Limited so that you can watch them. You can also connect with Gaurav sir and Sonia ma'am at their respective LinkedIn IDs. The entire Franchise India team is dedicated to help you with best of the solutions. And tomorrow, under Business Opportunity with Chai webinar series, we are inviting you to join us the journey for a brand which comes from Rajasthan. Jaipur-based brand, the Yellow House, we are representing tomorrow, where you can interact with the team who are coming and presenting their business model. So please do registration today at the same business hotline number so that you can join us tomorrow. Thank you once again for joining in today. Have a great day ahead. Thank you so much. Thank Thank you. you. Bye-bye. Thank you. Thank you. Bye-bye.